Welcome to English grammar class, dear students. So today we will learn about how to write personal letters. So before I begin, I would like to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So now, let's begin with our today's topic. For this, open your books at page number 237. Chapter 35, Personal Letters. Personal letters are written to friends, relatives, acquaintances, or colleagues at work. They are written in a simple, familiar and informal style. पर्सनल लेटर्स को आप इनफॉर्मल वे में लिखोगे और किन को लिखोगे जिनको आप अच्छे से जानते हो, आपके relatives, friends, acquaintances और colleagues. They have a definite purpose such as congratulating a friend on a success in a competition or promotion. They are also written accepting or refusing an invitation to a ceremony, party, or wedding. Furthermore, personal letters are exchanged between friends and relatives describing a holiday or narrating a series of events of common concern. सो पर्सनल लेटर्स, अगर कोई कंपटीशन में जीता है या कोई प्रमोट हुआ है तो उसकी सक्सेस पे आप कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लिख सकते हो. अगर आपको किसी सेरेमनी, पार्टी और वेडिंग का इनविटेशन आया है तो उसको एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ करने के लिए लिख सकते हो. और इसके अलावा अगर कोई कॉमन टॉपिक ऑफ कंसर्न हो तो उसके बारे में भी आप लेटर्स लिख सकते हो. In this chapter we shall consider personal letters under two parts, the layout and the subject matter. इस चैप्टर में हम पर्सनल लेटर्स को दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, लेआउट और सब्जेक्ट मैटर. फर्स्ट इज लेआउट ऑफ पर्सनल लेटर्स. पार्ट्स ऑफ अ लेटर. एवरी लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 6 पार्ट्स. कोई भी लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है, उसमें ये 6 पार्ट कॉमन होंगे. फर्स्ट पार्ट इज़ द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट. सेकेंड इज़ द सैल्यूटेशन और फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग. Third is the body of the letter. Fourth is the subscription or the ending. Fifth is the writer's name. And sixth is the superscription or address on the envelope. The last point is generally not followed in the examination. So the last part is not followed in the examination. इसको आप skip कर सकते हो. Now, address of the writer. The address of the writer is placed at the top right hand corner of the page. So पेज के टॉप पर राइट हैंड कॉर्नर की साइड पे आप एड्रेस मेंशन करोगे. डू नॉट राइट योर नेम अबव द एड्रेस. एड्रेस के ऊपर आपने अपना नेम मेंशन नहीं करना. ईच पार्ट ऑफ द एड्रेस शुड बी ऑन अ सेपरेट लाइन. दीज मे बी स्टैगर्ड और स्ट्रेट. सो एड्रेस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट लाइन्स में आपको लिखने हैं. द फर्स्ट लाइन विल गिव द नेम ऑफ योर हाउस. फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? House name. The second line will consist of the number of the house and name of the street. Second line पे आएगा house number या फिर name of the street. The third line will give the village, city, town, state followed by the pin code. Third line में village, city, town का name और उसके साथ में pin code mention करना है. Finally, the name of the country will be written if necessary. तो अगर ज़रूरत पड़े तब कंट्री का नेम मेंशन करना है, नहीं तो नहीं. योर एड्रेस माइट लुक लाइक एनी ऑफ दिस इन ब्लॉक फॉर्म विद और विदाउट पंचुएशन. सो एड्रेस इस तरह से दिखेगा. सबसे पहले आएगा हाउस नेम, देन हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, देन स्टेट, सिटी या टाउन उसका नेम, उसके बाद पिन कोड. ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स है और यहाँ पे फुल स्टॉप है. बट अगर ब्लॉक में लिखना है तो पंचुएशन नहीं आएगी, बट हम पंचुएशन के साथ वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे. मूविंग ऑन, डेट. द डेट ऑफ द लेटर इज़ रिटन डायरेक्टली बिलो द एड्रेस. सो एड्रेस के नीचे डेट डालोगे. इट इज़ एडवाइजेबल टू राइट द डेट इन फुल इंडिकेटिंग द डेट, मंथ एंड द ईयर एज शोन बिलो. सो
जो डेट है उसको कंप्लीट लिखना है, फुल में लिखना है। पहले डेट मेंशन करनी है, फिर मंथ मेंशन करना है और फिर ईयर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल ये हो गया एड्रेस, और एड्रेस के नीचे मेंशन की गई है डेट, ठीक है, 1 मार्च 1998। एब्रिवेटेड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग द डेट एज 1/3/98, 1.3.98 or March 1, 98 are not considered appropriate by some and therefore are to be avoided। तो ये फॉर्म्स जो 3 यहाँ पे दी गई हैं इनको आपने अवॉइड करना है क्योंकि ये एब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं। हम सिर्फ ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे व्हेन वी आर राइटिंग अ डेट। नाउ ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन। After you have written your address and the date, go to the left hand side of the page and write the salutation. The greeting or salutation has a line to itself and is followed by a comma. The form of greeting will depend upon the relation in which you stand to the person to whom you are writing. Here are some examples of greeting. तो जब आपने एड्रेस और डेट मेंशन कर दिया उसके बाद लेफ़्ट साइड पे जाके आप सैल्यूटेशन दोगे। तो जो ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन है वो डिपेंड करती है कि जिसको आप लिख रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू होम, पहले नियर रिलेटिव्स, अगर नियर रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो ग्रीटिंग कैसे होगी? डियर आइडा, डियर डैडी, डियर अंकल पीटर एक्सेट्रा। ओके। क्लोज फ्रेंड्स को अगर लिख रहे हो तो लिखोगे डियर सुरेश, माई डियर मोना एक्सेट्रा। एक्वेंटेसेस को लिख रहे हो तो डियर मिस्टर गुप्ता, डियर मिस डिसूजा एक्सेट्रा। लवर्स, डार्लिंग, डियरेस्ट ब्रेंडा एक्सेट्रा। So these are the form of greetings. Then opening sentence. The opening sentence of the letter should either be in response to an earlier communication or have a reference to the subject of the letter. तो opening sentence आप किसके बारे में लिख सकते हो? जो बात आपने इस रिलेटिव से पहले की थी, कोई भी अर्लियर बात है ना, कोई पुरानी बात, उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हो, या फिर जो सब्जेक्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप लिखना चाहते हो तो उस सब्जेक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। समटाइम्स इट मे बी जनरल इन नेचर। Here are some examples of how to begin the first sentence of a letter. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप लेटर को स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल थैंक यू वेरी मच। फॉर, ठीक है, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। वी वर शॉक्ड टू हियर डैट। आई हैव टू अपोलोजाइज फॉर। आई एम वेरी सॉरी टू हियर डैट। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू। सो अगर कोई पुरानी बातें हैं जहाँ पे आपने कोई अपोलोजाइज़ करना है, सॉरी बोलना है, जहाँ किसी बात के लिए थैंक करना है, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी स्टार्टिंग ले सकते हो। मूविंग ऑन, बॉडी ऑफ द लेटर। द बॉडी ऑफ द लेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर एंड रिक्वायर्स ग्रेट अटेंशन। दिस इज़ डेल्ट विद सेपरेटली इन दिस चैप्टर। सो जो बॉडी है एक लेटर को लिखने की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक लेटर का, और उसमें आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। दिस इज़ डेल्ट विद सेपरेटली इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में इसके बारे में अलग से भी बताया गया है। नाउ कंक्लूडिंग सेंटेंस। द कंक्लूडिंग सेंटेंस राउंड्स ऑफ the subject matter or conveys love and respect to the family members. Here are examples of concluding sentences which leave a friendly impression. कंक्लूडिंग सेंटेंस हो गया वो जब आपने सारी लेटर फिनिश कर दी उसके बाद आपने एक लाइन ऐड करनी है। सो उसमें से आप कोई भी कंक्लूडिंग लाइन ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, काइंडली गिव माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर सून। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट। डोंट हेजिटेट टू राइट अगैन इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। डू राइट अगैन सून। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आप कंक्लूडिंग सेंटेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। लास्ट इज सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। जब आपने जो लेटर लिख ली है उसको अब फिनिश करना है तो कैसे करोगे? अ लेटर मस्ट क्लोज विद सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पोलाइट लीव टेकिंग एस। तो पोलाइटली आपने लीव टेकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल टू होम, अगर नियरेस्ट रिलेटिव से आप लीव ले रहे हो तो आप लिखोगे योर्स अफेक्शनेटली, your affectionate daughter, son, sister, niece, etc. क्लोज फ्रेंड्स से अगर लिखना है तो your sincerely। acquaintances के लिए भी सेम, your sincerely। signature, the signature or the name of the writer comes below subscription as
तो जब आपने ये सब्सक्रिप्शन डाल दी, उसके बाद में लास्ट में आप डालोगे अपना नेम और सिग्नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले लीव टेकिंग के लिए ये सब्सक्रिप्शन डाली, योर्स सिंसियरली, उसके बाद आप डालोगे अपना नेम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है शाइनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग अ लेटर. Now let's discuss about the body of the letter. This is the most important part of the letter. Plan your letter before you write so that your writing has a logical or a chronological order. So जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो बेहतर रहेगा कि उससे पहले ही आप प्लान कर लो कि आप क्या लिखने वाले हो. सेकेंड इज़ गिव एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन एंड अ पॉजिटिव कंक्लूजन. उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाओ, ठीक है. लिखने में जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे वो भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और कंक्लूज़न जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला उसको पढ़ के पॉजिटिव फील करे. यूज़ पैराग्राफ्स टू गिव योर लेटर अ स्ट्रक्चर एज वेल एज इट्स अपीयरेंस. तो लेटर्स को लिखने का बेस्ट वे है कि उसमें पैराग्राफ्स फॉर्म करो. बस एक पूरा ऐसे ही मत लिख दो कि बिना पैराग्राफ के आपने लिखना स्टार्ट कर दिया और अंत तक बस लिखते ही जा रहे हो. उसमें पैराग्राफ्स ऐड करो. इफ़ यू आर डीलिंग विद अ कंट्रोवर्शियल इशू, sort out your ideas in an orderly manner, get them into the right sequence, and then use simple sentences in concise paragraphs to press home your argument. तो अगर आप किसी कंट्रोवर्शियल इशू में डील कर रहे हो, तो कोई विवाद वाली बात होगी, ठीक है, तो उसमें आपके जो आइडियाज़ हैं उसको अच्छे से एक्सप्रेस करो. कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपने आइडियाज़ दे दिए, सेकंड पैराग्राफ में आपने उसके सॉल्यूशंस दे दिए और थर्ड में आपने बता दिया कि आप उस आर्ग्यूमेंट में सही क्यों हो. तो इस तरह से वो राइट और कंसाइज वे में फॉर्म करने हैं. बी रियलिस्टिक एंड सिंसियर इन योर अप्रोच. तो लिखते टाइम आपको रियलिस्टिक रहना है और सिंसियर रहना है, क्योंकि जो राइटिंग है वो पढ़ने से पता लगना चाहिए कि वो रियलिस्टिक है या सिंसियरली लिखी हुई है. सो नाउ लेट्स सी द फॉर्मेट. फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे? वी विल फॉलो द ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ पर्सनल लेटर. सबसे पहले आएगा एड्रेस ऑफ द लेटर राइटर. सबसे पहले एड्रेस आएगा, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, आफ्टर डैट द कंटेंट. कंटेंट में पैराग्राफ्स फॉर्म होंगे. उसके बाद आएगी सब्सक्रिप्शन एंड देन नेम और सिग्नेचर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स. ऑल द वेरी बेस्ट.